ठीक है जी, thank you ma'am. Yes, Vite, let us start the work formally. So yesterday we have started this new chapter, measures of dispersion. Dispersion means the extent of variation of the values from any measure of central tendency, or the level of variation or the degree or extent to which values differ from or vary from any measure of central tendency, that can be mean, median and mode. Now we are doing, since we are concerned with only one measure of central dispersion, that is standard deviation, so other measures of central tendency will not be discussed. Otherwise, rest all the four these measures, mean, deviation, range, which we don't have to do. They are all related with other measures of central tendency. Since we are not doing as per the revised one, so we will remain confined up to arithmetic mean only. And then we started the first method, that was standard deviation. Standard deviation means that statistical tool in which we take the square root of the arithmetic mean of the squares of deviations taken from actual arithmetic mean. अभी आप सब जो बता रहे थे, you were missing the term. I am repeating, listen again. Standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squares of deviation. You were missing squares. Squares of deviations taken from actual arithmetic mean. This is the definition. Then uh, in all the three series, there are three methods, just like arithmetic mean. Yesterday we have done direct method, that is saying standard deviation is equal to square root sigma, then in bracket x minus x bar whole square divided by n, where n means number of items, x means x variable, x bar means arithmetic mean. We are free to calculate arithmetic mean with any method of our choice. No compulsion is there. आप चाहे direct method लगाओ, चाहे shortcut या step deviation, आपकी choice है. Then we have just written, we wrote the second method, shortcut method, that was square root sigma dx square divided by n minus sigma dx divided by n whole square. This formula was written, but numerical was not done. So let us complete this question. Let us write the question to related to this. Just let me check the board visibility. Please write down the values. Calculate standard deviation with shortcut method. Marks are given, marks of students are given, means variable is marks, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 48, 70, 80. I am repeating, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 48, 70, 70, 70, last is 80. Okay? So let me also write x bar means marks variable. Let us name it x. ये हो गया हमारे पास 5, 10, 20, 25, 40, 45, 48, 70, 80. Now, as per shortcut method, first of all, what can we do? Simplest, we can calculate, we can count the number of items. N count कर सकते हैं. N means number of items. How many items are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कहीं भी आप लिख लो N is 9. ठीक है. Second हमें चाहिए as per the method. Let us write this is standard deviation, shortcut method. Shortcut method. This is sigma dx square over n minus sigma dx over n whole square. ठीक है. अब हमें चाहिए dx. तो dx का फॉर्मूला हाँ जी पूरी ब्रैकेट पे है पूरा. Then dx. Now we know dx is equal to x minus assumed mean. Now we don't know, and in the statement it has not been told कि which value is to be taken as assumed mean. That means we are free. कोई भी value को ले सकते हैं. Let us take 40 ले ले. Otherwise you can take any. ठीक है. Let us. I want to take 40. You may take any value. Ultimately answer will be the same. तो अगर हम 40 को ले लेते हैं यहाँ you can encircle this value और side पे लिख लो a ताकि हमें याद रहे.
ऊपर यहाँ भी आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 40. नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 40. जो भी साइन आएगा प्लस माइनस का वो एज इट इज लिखना है, ठीक है. प्लस का तो नहीं लिखते, माइनस साइन आएगा तो दैट इज टू बी रिटन 5 minus 40 minus 35, 10 minus 40 30 minus 30, then minus 20, then minus 15 0 5 8 30 40. ये आ गया, ठीक. अब अगला क्या चाहिए हमें, डी एक्स स्क्वायर मीन्स ये कॉलम का स्क्वायर. तो स्क्वायर का मतलब उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है. ये आ जाएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर कॉलम. -35 इंटू -35, प्लीज मल्टीप्लाई करिए. माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. 35 इंटू 35 कर लीजिए. 1245 25. बाकी भी चेक कर लीजिए बेटे, समटाइम्स मिस्टेक कैन बी देयर, ऑल कैन चेक. देन -30 इंटू -30 900, देन 400, देन 225 0 25 64 900 1600. अब इसका टोटल, दिस इज सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये टोटल, और देन इसका भी टोटल कर लीजिए. टोटल कितना है, हरिया बेटे हरिया. -17. Yes. Sigma dx, this is -17. Now you find the total of this sigma dx square का total. ये वाला total. Have you done the total? कितना है? कोई नहीं, आप 5339 है. ठीक है, 5339. This is right. 5339. Okay. Sigma dx square है 5339 and sigma dx is equal to -17. So let us put the values in formula to get the answer. So sigma dx square, ये value 5339. 5339 divided by n is 9 minus sigma dx -17 divided by 9 is the whole square. अब चेक कर लीजिए, 5339 को डिवाइड बाय 9 चेक करो, हो रहा है डिवाइड? नहीं हो रहा डिवाइड, कोई बात नहीं. फिर आप इसका पहले कर लो, स्क्वायर कर लो, फिर एलसीएम लेके आराम से हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ फिर पॉइंट में आप करना पड़ेगा आपको. मतलब दैट इज योर फ्रीडम, जैसे आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे. ईदर यू कैन डिवाइड दिस वैल्यू. इफ इट इज गेटिंग कैंसल्ड वेरी नाइस, नहीं होता है, यू वांट टू गो अहेड विद पॉइंट तो भी ठीक है. नहीं तो नहीं पॉइंट में जाना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. जो आएगा 9 का स्क्वायर 81 और 9 का आप एलसीएम ले सकते हो. ठीक है, सारा कुछ कर कर आके as per the solution it is coming out to be 589.65. सारा करके बता दो, सारा करके, ठीक है. बट अदरवाइज दिस पार्ट इज टू बी डन बाय यू. आपको यू नीड टू बी फास्टर इन कैलकुलेशन एंड अल्टीमेट आंसर इज 24.2. because if we spend whole of the time in calculation only तो 40 minutes will get spent in this only. Okay, ये आ रहा है 24.2. But if you leave your question up to this part only, you will get very less marks because main calculation starts from this part onwards. ठीक है जी, is it clear? ठीक. चलिए, now next is step deviation method. This was shortcut method. नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड. बिल्कुल मिलता जुलता मेथड है. आई होप ऑल स्टूडेंट्स हैव डन. यस,
please write down step deviation. Step deviation method. Sigma d dash x square divided by n minus sigma d dash x over n into c. C or I, whatever you want to write. C means common factor. ठीक है? सारे steps सेम है. Only one additional step is there. What is that? D dash x. Now we know d dash x is equal to dx over c. मतलब dx के column में we have to find the value with which we can divide all the values other than 1. 1 से तो सारी divide हो जाती है. 1 को छोड़ के बाकी और किसी भी value से divide होते हैं तो that will give a common factor. And dx is equal to x minus a, और a का meaning assumed mean. If it is given in the statement, तो then we have to follow that only. फिर नहीं अपनी मर्जी से चेंज करना. बट अगर नहीं दिया हुआ है तब आप कोई भी वैल्यू को x में से आप ले सकते हो. ठीक है, चलिए लेट अस राइट वन क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन. x वेरिएबल इज 50, 70, 100, 150, 130. These are the values, and we are asked to do this question with find standard deviation with step deviation method. ठीक है. First is आपने नोटिस किया होगा yesterday also I wrote one question. Values ऊपर नीचे भी हो जाए, there is no compulsion to write them in ascending order, because mean के केस में हमने क्या करना है, ऐड ही करना है. तो ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी एडिशन उतना ही आना है, अरेंज कर गए तो भी उतना ही आना है. If we don't arrange, even then total will be same. तो आपकी चॉइस है. इफ यू वांट टू अरेंज वेरी फाइन, इफ यू डोंट वांट टू अरेंज तो भी इट इज इक्वली फाइन. ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा. चलो एनी हाउ n इज इक्वल टू 5. नाउ व्हिच वैल्यू यू वांट टू टेक एज अज्यूम्ड थिंग? 100. सेंट्रल वैल्यू को ले लेते हैं 100, अदरवाइज कोई भी ले लो. dx इज इक्वल टू x minus a and a is equal to 100. 50 minus 100 minus 50 minus 30, 0, 50, 30. अब हमारा लेना है हमने, अगर तो शॉर्टकट मेथड होता तो फिर यहीं तक रुक जाना है, इसी का स्क्वायर कर लेना है. अब हमें क्योंकि पूछे स्टेप डेविएशन, तो अब एक कॉमन फैक्टर देखिए 10 से डिवाइड हो रही है. 2 के से डिवाइड करने के बाद भी और किसी वैल्यू से हो सकती है. मैक्सिमम नंबर देना है, मैक्सिमम नंबर 10 से ही डिवाइड हो, मतलब उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे डिवाइड करने के बाद दोबारा डिवीजन ना हो सके. ठीक है, तो 10 में हमारा नंबर बन रहा है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d dash x is equal to d dash dx over c. c is 10. तो सभी वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंगली 10 से डिवाइड करें. -50 over 10, -5, -30 over 10, -3, 7, 5, 3. अब इसका स्क्वायर. ठीक है, शॉर्टकट में इसी कॉलम का स्क्वायर कर लेते हैं. अब हमने यहाँ पे d dash x का स्क्वायर करना है. d dash x स्क्वायर -5 into -5, 25, 3 into 3, 9, 0, 25, 9. अब इसका कितना है? 68. ठीक है, और एक इसका भी टोटल निकाल लीजिए. ये तो मैं कट गए 0. ठीक. Now we can put the values in formula to get the standard deviation. It is sigma d dash x square केवल 68 divided by n is 5 minus, now sigma d dash x, केवल sigma d dash x it is 0. 0 divided by 5 इसका whole square into common factor 10. ठीक है जी. अब आपको ये आ गया हमारे पास 68 over 5 minus 0 over something 0, उसका स्क्वायर भी निकाल ले 0 का तो भी स्क्वायर ही, मतलब 0 ही है. ये 0 आ गया into 10. That means 68 over 5 into 10. ठीक. अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 68 को डिवाइड करना ही पड़ेगा 5 से, क्योंकि और किसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. अब करिए डिवाइड कितना है? 13.5 into 10. प्लीज टेक केयर, ये जो 10 है कॉमन फैक्टर, ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है. 6 आ रहा. Jatin has done, and according to him
ये आ रहा है 68 पॉइंट डिवाइडेड बाय 5 करके आया 13.6। अब इसका रूट निकालिए। 2 डिजिट तक नहीं भी कर सकते, यू कैन फाइंड अप टू 1 डिजिट। 13.6 का रूट जितना आएगा फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। आई एम डूइंग हियर 3.6 3.62 into 10। चलो 3.3 तो है ही है ना, ये देखो 4 4s are 16, 4 तो हो नहीं सकता, 3 3s are 9, रूट निकाले तो 13 से लेस 12 ही है, सॉरी 9 ही है ना, तो 3 पॉइंट तो होगा ही कुछ ना कुछ। आगे की वैल्यू देख लो, कोई और बच्चा भी चेक करिए। इतना ही 2 डिजिट्स तक नहीं भी आपसे होता तो 3.6 तक भी कर लो तो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं। कितना आ गया ये, अगर इसके 10 को पॉइंट को डाला, ये कट गई 0 तो बच गया कितना है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 36.2। यही आंसर है, ठीक है। सो मेन थिंग इन दिस मेथड इज टू बी फास्ट इन कैलकुलेशंस, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दैट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हाँ जी, राइट डाउन x वेरिएबल values are 2 4 6 8, any variable x is given and its values are 2 4 6 8. Find standard deviation with shortcut method as well as step deviation method. You can make all the columns in the same table और formula के according फिर 2 4 6 8। हाँ जी, सॉल्व क्या, दोनों मेथड से, शॉर्टकट एज वेल एज स्टेप डेविएशन। थोड़ा सा फास्ट करिए because we have only next week to complete the work. Don't sleep while calculating. नहीं, ये तो मैं अगला काम लिख रही हूँ, आप पहले वो करिए। कर लिया बेटे, कितना है आंसर? रूट 5। तो रूट 5 को निकालिए ना आगे, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना, 25। All can check with the shortcut method. This answer is there. नहीं आएगा, बट हमने तो करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए। आंसर तो तीनों मेथड से ही सेम आएगा, तो हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। अब वो आपके dx तक तो कॉलम बने ही हुए हैं, उसी के आगे d डैश x निकाल लीजिए, d डैश x स्क्वायर निकाल लीजिए, why to write again। एग्जाम में तो यू विल गेट ओनली वन मेथड, ठीक है ना, कोई एक मेथड ही पूछा जाएगा आपको।
Same again. All are requested to be faster. Same ही आंसर आएगा बेटा. You will get the same answer. 2.25 with step deviation method also. अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी यू विल गेट सेम आंसर 2.25. ठीक है. ये कैलकुलेशंस आर सो इजी. जान के ही मैंने ऐसा सिंपल सा दिया है. पेपर में इतना सिंपल नहीं आएगा आपको. कर लिए. जसकीरत, श्रेया डन बेटे. हो गया. लास्ट गुरजोत सिंह डन. आई होप मेजोरिटी हैव डन. चलो जी. With any of the methods, we will get same standard deviation. ठीक है? Yes. This was all about individual series. Now give next heading, discrete series. Next heading, discrete series या standard deviation in discrete series. First formula is, first method is direct method. Names are same as usual. Direct method के according, standard deviation. This is sigma. This is the symbol. Means standard deviation. SDV होगा, that also means standard deviation. This is equal to sigma f into x minus x bar whole square divided by sigma f. Sigma f into x minus x bar whole square divided by sigma f, where sigma f means sum of all the frequencies, summation. X means x variable, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में वी आर गिवन टू कॉलम्स. एक वेरिएबल का कॉलम होता है विच इज कॉल्ड एक्स और एक हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है. इसके बाद हमने निकालना है एक्स बार. ठीक. तो अब एक्स बार के लिए नाउ अगेन यू आर फ्री टू अप्लाई एनी मेथड. मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ डायरेक्ट मेथड, बट आप कोई भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं. सपोज अगर डायरेक्ट मेथड लगाएं, कैन एनीवन टेल? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डायरेक्ट मेथड ये मेथड. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन. वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल आर 2, 4, 6, 8 and frequencies are 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. These values are given and we have to calculate with this method. So first step, sigma f निकाल लेते हैं. सिग्मा एफ 3 और 4 और 4 10 10 आ गया. हाँ जी बेटा. जैसे प्रॉब्लम है बेटे? नहीं नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम है किसी यू कैन आस्क. नाउ नेक्स्ट हमें पहले चाहिए एक्स बार, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एफ एक्स. कोई नहीं, मुझे करना है. आपने कर लिया, ठीक है, आप आगे कर लो. मुझे तो सबके साथ ही चल देना. स्लो लर्नर्स भी होते हैं. 3, 2, 6 अब इसका टोटल आया 50. We can find 50 divided by 10, that is 5. ठीक है. 30 और 20 50 हो गए 50. ठीक है. अच्छा, अब नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ तो बाई चांस इट हैज टू बी 5. अगर पॉइंट में आ जाए तो फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं. अदरवाइज राउंड ऑफ करना नहीं चाहिए, बट ओनली टू सेव टाइम, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इन योर नेक्स्ट क्लासेस यू विल गेट सफिशिएंट प्रैक्टिस बाय दैट टाइम. पॉइंट से ही निकालना. ठीक. अभी के लिए कि आप नया सीखते हैं, दैट इज वाई. तो 5 पॉइंट अगर हो 5.5 तो कर देना 6. 5.5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, और 0.5 से कम हो तो पिछला नंबर हो. एनी हाउ, अब हमारे पास आ जाएंगे x माइनस एक्स बार. ये आ गया. तो x बार इज 5. नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x वेरिएबल 5 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ हमने x में से x बार को निकाल के डेविएशन बनानी है. तो अभी आ गया 2 minus 5 minus 3, 4 minus 5 minus 1 1 3. ठीक.
अब इस कॉलम का होल स्क्वायर, ये देखिए, ये लिखा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इस कॉलम का x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, -3 इंटू -3 9, -1 इंटू -1 1 1 9। ठीक, अब लास्ट में ये करना है f इंटू, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स f इंटू दिस कॉलम, फिर उसका टोटल निकालना है। ये नहीं है कि ये सिग्मा एफ के साथ ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं है, एफ कॉलम के साथ ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, लेट अस सी व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ हियर, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। अब आपने ध्यान से अपना एक हाथ यहाँ रख के एक इधर की मिक्सिंग ना हो जाए वैल्यूज की, 3 इंटू ये 9, ये हो गया 27, फिर 1 इंटू दिस 1 1, फिर उसके बाद 4 इंटू 1 4, then 2 इंटू 9 18। Now you see this table, 50, it is 50। डन बेटे, इतना कर लिया टेबल सबने? Now put the values, sigma f into x minus x bar whole square 50 divided by sigma f 10, that is 5, तो 5 का गुणक निकालो, 2.2। ठीक है जी, यहाँ तक आप करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, कैलकुलेशन छोड़ देंगे तो अकॉर्डिंगली फिर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए, पहले एक एक मैथड कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, बाद में एक प्रैक्टिस में फिर तीनों मेथड से कर लेंगे। नाउ राइट डाउन दिस सेकंड शॉर्टकट मेथड। आई होप ऑल हैव रिटन। This is standard deviation is equal to sigma f into dx square over sigma f minus sigma f into dx divided by sigma f whole square। स्टेप्स सारे सेम है, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो हम साथ साथ में f से मल्टीप्लाई करें, बाकी वैसे ही लिखा है, सेम ही लिखा है, f से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, where sigma f means summation of all the frequencies, dx means x minus a, and a means assumed mean। अगेन आई एम रिपीटिंग, assumed mean अगर पेपर में दिया है क्वेश्चन में तो वही लेना है, अदरवाइज आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। लेट अस राइट, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लीज राइट अगेन, x वेरिएबल 2 4 6 8, 2 4 6 8 and frequencies were 3 1 4 2, 3 1 4 2। Now we don't have to find mean with the direct method, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हमें चाहिए dx, तो dx कॉलम के लिए dx इज इक्वल टू x माइनस ए। अब आप बताइए a कौन सा लेना चाहते हैं, 4 या 6? 4, ओके, जो भी वैल्यू को लेना है उसको आप सर्कल कर लीजिए। You can take any value as assumed mean. अब now from all values of x variable 4 is to be subtracted one by one, 2 minus 4 minus 2 0 2 4। फिर as per formula एक हमें कॉलम चाहिए dx स्क्वायर का कॉलम, तो इसके नेक्स्ट ही बना लेते हैं dx स्क्वायर, तो ये हो गया -2 इंटू -2 4 0 4 16। अब क्या करना है, नाउ यू सी दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब 2 मोर कॉलम्स विल बी प्रिपेयर्ड। एक कॉलम में क्या करना है, f इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नेक्स्ट कॉलम में f को dx स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, f into dx, और अगला कॉलम है हमारा f into dx स्क्वायर। ठीक है,
नाउ एफ कॉलम और ये कॉलम की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -2 -6 0 4 इंटू 2 8 4 2 इंटू 4 8। अब एफ कॉलम को dx स्क्वायर के साथ 3 इंटू 4 12 1 इंटू 0 0 4 into 4 16 16 into 2 32. Now find these two totals. Noon 5 10 और 60 आ रहा है 60 by 10 minus 10 by 10 over 10 का होल स्क्वायर very right now putting the values sigma f dx square ये वाला 60 divided by sigma f का हमारे पास यहाँ पे करिए 10 का divided by 10 minus sigma f dx ये 10 over 10 इसका होल स्क्वायर ठीक। अब ये 10 और 10 इट इज गेटिंग कैंसल बीच में कैंसिल कर दो ये आ गया 1 1 से कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 या दूसरी तरह से आप करना चाहो 10 का स्क्वायर 100 over 100 दोनों का स्क्वायर उन्होंने कॉमन ब्रैकेट है तो भी 1 ही आ जाता है तो ये आ गया हमारा 6 ये हो गया 6 minus 1 that is 5 का रूट that is 2.25 आंसर ठीक। नाउ प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब ये कोई और वैल्यूज कर लेते हैं थोड़ा चेंज हो जाएगा 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए। हाँ जी नेक्स्ट मेथड राइट डाउन स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन दूंगी वो आपने तीनों मेथड से करना है ठीक है। आई होप ऑल चिल्ड्रन हैव डन। Deviation method. Standard deviation is equal to sigma f into d dash x square over sigma f minus sigma f into d dash x over sigma f whole square into c, where d dash x is equal to x minus a and dx is equal d dash x is equal to dx divided by c and dx is equal to x minus a ठीक है। राइट वन क्वेश्चन। हाँ जी बेटे वैल्यूज आर एक्स वेरिएबल 10 20 30 एक्स वेरिएबल 10 20 30 40 50 and frequencies are 2 4 6 3 1 2 4 6 3 and 1. Find standard deviation with step deviation method. ठीक है। First step, whenever you get any question, तो first of all you need to identify the nature of the series. पहले नहीं शुरू हो जाना कि जो दिल किया वो मेथड लगा दो, पहले आप देखो कौन सी सीरीज बनती है। ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है बिकॉज सिंगल वेरिएबल नहीं है, सबने साथ में फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। कॉन्टिन्यूस भी नहीं है बिकॉज क्लास इंटरवल्स आर नॉट देयर। तो ये कौन सी सीरीज है? वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी हो तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। पहले तो आप सीरीज डिसाइड कर लो, उसके बाद देखो कि हमें कौन सा मेथड पूछा है, स्टेप डेविएशन, देन वी राइट दिस मेथड। ठीक, फिर एक एक करके आप देखो क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी सिग्मा एफ कितना है 16। देन हमें चाहिए डी डैश एक्स, उसके पहले चाहिए डी एक्स। तो कॉलम बना लीजिए डी एक्स। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आई होप ना वो सबको बताइए। एक्स माइनस ए, नाउ विच वैल्यू यू वांट टू टेक एज ए 30। यहाँ पर आप सर्कल करके ए लिख दीजिए 30।
नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल 30 को माइनस करते रहिए, 10 minus 30 minus 20 minus 10 0 10 20. Now d dash x. Now all values are getting divided by 10. ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 10, ये हो गया -2 -1 0 1 2, सभी को 10 10 से डिवाइड कर दिया। अब d dash x स्क्वायर कॉलम -2 into -2 4 1 0 1 4। फिर आगे अब एक बार f कॉलम को d dash x से मल्टीप्लाई करना है, एक बार d dash x स्क्वायर कॉलम से। सो नेक्स्ट हो गया हमारे पास 2 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, f into d dash x, और नेक्स्ट हो जाएगा f into d dash x स्क्वायर, राइट। अब एक बार f into d dash x, 2 into -2 -4, 4 into -1 -4, 0 into 6 0, 1 into 3 3, 2 into 1 2। अब f into ये d dash x स्क्वायर कॉलम, 2 into 4 8, 4 into 1 4, 6 into 0 0, 1 into 3 3, 4 into 1 4। अब इनके टोटल चेक कर लीजिए, 8 माइनस के और 5 प्लस के हो गए -3 आ गया, और ये हो गया 8 और 4 12 16 या ओके। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा f d dash x स्क्वायर, ये वैल्यू 19 डिवाइडेड बाय सिग्मा f है हमारे पास 16 माइनस, यस। अब जो साइन यहाँ पर है एज इट इज वी हैव टू टेक द वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 16 into 10। ठीक है, माइनस साइन को नहीं छोड़ना, जो जैसा है साइन वैसा ही आपने लगाना। अब इसको आप ट्राई टू कंप्लीट एट होम। अगर तो ये वैल्यू कैंसिल हो रही हो फिर तो ठीक है, अब ये नहीं कैंसिल हो रही तो आप इसका स्क्वायर निकाल लो, -3 into -3 9, और 16 into 16 आई थिंक 196 होता है शायद, देख लेना जितना भी होता है, ठीक, जो भी आएगा फिर आपने एलसीएम लेके करना।